کرتے کرتے ایک ہفتہ بھی گزر گیا تھا۔ اس ایک ہفتے میں زنجبیل نے ہم ڈیزائن کردہ سارے کپڑوں اور جویلری چیک کر لی تھی جو ہر لحاظ سے مکمل تھی۔ باہر سے وہ سب کچھ ڈسکس کر چکی تھی اور اس نے بھی سب اوکے قرار دیا تھا۔ باقی کے ڈیزائن بھی ریڈی تھے اور کل ان کو یونٹ میں لانچ کیا جانا تھا۔ کمپنی کی ماڈلز کی بھی ساری تیاریاں ہو چکی تھی۔ بی اماں کا علاج چل رہا تھا مگر ابھی تک اس نے ساری پیمنٹ جمع نہیں کروائی تھی۔ ابھی تک جو پیسے اس نے جمع کروائے تو وہ اپنی جویلری بیچ کر کروائے تھے جو تقریباً 3 لاکھ بنے تھے، اور یہ اتنی رقم نہیں تھی کہ ہسپتال والوں کی تشفی ہو پاتی۔ ابھی اماں ہسپتال میں ایڈمٹ تھی جبکہ ابرش کو وہ روز اپنے ساتھ لے آتی تھی جو اچھے بچوں کی طرح اسے تنگ نہیں کرتی تھی۔ اس ایک ہفتے میں انابیہ روز ہی آفس آتی رہی تھی اور ہر روز بہزاد کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ بہزاد کے اکتائے انداز اسے بتاتے تھے کہ اس کا چپکنا بہزاد کو پسند نہیں۔ انابیہ بھی ڈھیٹ ہی تھی جو زنجبیل کو یہ جتانے کی خاطر کہ بہزاد اس کا ہے ہر وقت بہزاد کے گرد منڈلاتی رہتی تھی۔ زنجبیل اسے بہزاد کے ساتھ دیکھ کر کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی اور یہی چیز انابیہ کو کھٹکتی تھی کہ وہ اتنی پرسکون کیوں ہے۔ اس دن کی تلخ کلامی کے بعد بہزاد اور زنجبیل کی کام کے علاوہ کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ زنجبیل کی غلط فہمی دور ہو گئی تھی لیکن اس نے ابھی تک بہزاد کو معاف نہیں کیا تھا کہ اگر وہ اسے چھوڑ کر گئی تھی تو وہ بھی تو اسے منانے نہیں آیا تھا، بلکہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس دوران ماہر اور زنجبیل کی دوستی پہلے سے بڑھ گئی تھی جو ماہر کی ہی بدولت تھی۔ ماہر وقتاً فوقتاً اس کے سامنے بہزاد کی تعریف کرتا تھا، اسے یہ جتانے کی کوشش کرتا تھا کہ وہ بہت اچھا ہے۔ ان کی ساری باتیں وہ بس خاموشی سے سنتی رہتی تھی، آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ ماہر کو لگتا تھا کہ وہ زنجبیل کو بہزاد کی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ جہاں ماہر زنجبیل کی طرف سے خوش تھا وہیں بہزاد پر اسے جی بھر کر تاؤ آتا تھا جو زنجبیل کو مکمل نظر انداز کرنے پر تلا ہوا تھا۔ ماہر جیسے انسان کم ہی ہوتے ہیں جو اپنی خوشی پر دوسروں کی خوشی کو ترجیح دیتے ہیں، ورنہ کچھ لوگ انابیہ جیسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی خوشی کی خاطر دوسروں کی خوشیاں زبردستی اپنے نام کر لیتے ہیں۔ اس وقت زنجبیل اپنے کیبن میں بیٹھی لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہی تھی جب اس کا ڈیسک ناک کیا گیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی بہزاد کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ آج بہزاد کو انابیہ نام کا دم چلا نظر نہیں آیا تھا جسے دیکھ کر وہ گہرا پرسکون سانس بھر گئی تھی۔ پاس ہی برش بیٹھی پینسل سے کاغذ پر لکیریں پھیر رہی تھی۔ کل جو ڈیزائن لانچ ہونے ہیں ان کی لسٹ اور سبھی ماڈلز کی لسٹ بنا کر میرے آفس میں آئے۔ بہزاد دو ٹوک انداز میں اپنا حکم سنا کر واپس چل دیا تھا جبکہ اس کے حکمرانہ انداز پر وہ آنکھیں گھما کر رہ گئی تھی۔ آیا بڑا حکم دینے والا، منہ پہ گاڑ کر کہتی وہ اس کے حکم کی تعمیل میں لسٹ بنانے لگی تھی۔ آدھے گھنٹے میں لسٹ بنا کر وہ لسٹ کو فائل میں رکھ کر اس کے آفس کی جانب بڑھی جبکہ ابرش بھی اسے جاتے دیکھ جلدی سے کرسی سے اترتی اس کے پیچھے بھاگی۔ یہ لیں، وہ بغیر نوک کیے دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوتے اس کے سامنے فائل رکھ کر بولی، آپ کو اپنے باس کے کیبن میں آنے کے آداب نہیں ہے، نوک کیے بغیر کیسے آئیں آپ؟ بہزاد نے سرد لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میں بہت بدتمیز ہوں اور میں اپنے پیروں سے چل کر آئی ہوں، زنجبیل نے بے نیازی سے کہا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ باس سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے آپ کو؟ بہزاد اس کی بے نیازی پر سلگ اٹھا تھا، اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا وہ غصے سے اس کے قریب پہنچا تھا مگر مقابلے کو اس کے غصے کی پرواہ تو کبھی بھی نہیں رہی تھی۔ کون باس؟ اور آپ تو میرے غازی ہیں نا؟ کمال کا معصومیت بھرا لہجہ تھا جو اس وقت زنجبیل نے اپنایا تھا کہ بہزاد اس کو دیکھتا رہ گیا۔ جسٹ شٹ اپ، بہزاد غزنوی نام ہے میرا اور میں آپ کا باس ہوں، آپ کا غازی نہیں۔ بہزاد نے تلخ لہجے میں اسے جتایا تھا۔ سیاہ آنکھیں زنجبیل کی بھوری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جہاں چھائے رنگ ہی انوکھے تھے۔ غازی اپنی بیلا سے کبھی اتنی اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا، پتہ نہیں کہاں کھو گیا ہے وہ۔ زنجبیل نے معصومیت سے کہتے اس کے کوٹ پر سے ندیدہ گرد جھاڑی تو
तो बहजाद ने एक हाथ से उसका हाथ थामा जबकि दूसरा उसकी कमर के गिर्द हायल किया। इस सब का मैं क्या मतलब समझूं? बहजाद उसके चेहरे पर झुकते उसकी कमर पर गिरफ्त सख्त की तो वो अपनी जगह सटपटा कर रह गई। उसे गाजी से इस हरकत की उम्मीद नहीं थी कि क्या कर रहे हैं, छोड़े मुझे। वो हिलकला कर रह गई थी जबकि उसके चेहरे पर छाए घबराहट के आसार देखता वो नंजिया मुस्कुराया था। मेरे सवाल का जवाब दो पहले। महजाद ने एक झटके से उसे मजीद करीब किया तो वो रोंसी सी हो गई। कब तक नाराज रहने का इरादा है? अपनी पठानी को माफ कर दो। जंजबील ने माजरत छोड़कर उसके गाल पर हाथ रखते कहा तो उसका हाथ झटक गया, मगर उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद ना किया। वो उसकी बात पर हैरान हुआ था। कहाँ वो उससे नफरत की दावेदार थी और कहाँ अब वो खुद माफ़ी मांग रही थी। मुझे मेरे वो अजियत भरे 10 साल लौटा दो जो मैंने अपनी मोहब्बत अपनी पठानी के बगैर गुजारे, तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। वो वक्त लौटा दो जब मेरी पठानी बगैर मुझे बताए मोहब्बत के सफ़र में अकेला छोड़ गई थी। बहजाद ने कहा तो वो बेबसी से उसे देखने लगी। नहीं लौटा सकती ना, तो मुझसे माफ़ी की उम्मीद भी मत रखो। और अब कैसे एतबार कर रही हो मेरा? मैं तो एतबार के लायक ही नहीं हूँ ना। बहजाद ने जहरखंद लहजे में कहा था। जंजबील की आंखें निम हुई थी मगर सामने वाला पत्थर दिल बंधा हुआ था। अचानक खटके की आवाज पर वो चौंक कर दरवाजे की जाने मुतवज्जो हुए जहां गिलास डोर से नन्ही अब्रिश चिपक कर खड़ी टुकर टुकर नहीं देख रही थी। उसके हाथ मुसलसल दरवाजे पर बज रहे थे लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। मेरी जान! वो जंजबील को एक झटके से आजाद करता अपनी तेजी से दरवाजे की जाने बढ़ा। इख्तियार से दरवाजा खोला ताकि दरवाजे पर अपना वजन डाले खड़ी अब्रिश गिर न जाए। मेरी प्रिंसेस यहाँ क्या कर रही है? बहजाद ने उसे गोद में उठाकर अपने वेयरिंग टेबल पर बिठाते हुए पूछा, दोनों हाथ उसके गिर्द जमा कर रखे ताकि वो नीचे न गिर जाए। मम्मी के साथ आई हूँ। उसने नाक चढ़ाकर जंजबील की तरफ इशारा किया जो इनको देखती अब बहजाद की कुर्सी पर जाकर बैठ चुकी थी जिस पर बहजाद ने कोई ध्यान नहीं दिया था। अब चॉकलेट खाएगी? बहजाद ने उसकी नाक की टिप पर रोक करते नरमी से पूछा। सारी चॉकलेट खाऊंगी, वो पुरजोश से बोली तो बहजाद उसे वहीं छोड़कर रूम फ्रिज की तरफ बढ़ा। यहाँ वो बुर्क के लिए हमेशा चॉकलेट रखता था जो अब उसके काम आ रही थी। ये हमारी लिटिल प्रिंसेस के लिए। चॉकलेट का रैप खोलकर अब्रिश को थमाई तो वो खुशी होती चॉकलेट खाने लगी। यहाँ से जाने के बाद कुछ मैन सीख लेना कि बॉस से कैसे पेश आते हैं। बहजाद ने अब्रिश का माथा चूमते जंजबील को कड़े तेवरों से देखते कहा तो वो मुस्कुराई। अब्रिश के लिए बहजाद का प्यार उसके दिल को हमेशा मुतमिन कर देता था कि जबकि बहजाद जंजबील के बदले बदले ढंग देखता कुछ मुतअज्जिब हुआ था। क्या उसकी सच्चाई बताने के बाद उसे उसके अंदाज में बदलाव आया था? ये सोच आते ही वो सर झटक गया था। मतलब अगर वो ना बताता वो पहले की तरह ही उससे नफरत करती और हमेशा की तरह आज भी उसे बेएतबार ही समझती। आप भी सीख लीजिएगा कि बगैर इजाजत किसी के बच्चे को हाथ नहीं लगाते। जंजबील ने भी तंज़ी अंदाज अपनाया। अब्रिश मेरी बेटी है, मेरी गुड़िया है ना अब्रिश? बहजाद ने उसे जवाब देते अब्रिश से इस्तफार किया। यश बाबा। उसकी मासूमियत से कहने पर बहजाद बेसाख्त एक बार उसका माथा चूम गया था जबकि अब्रिश के जवाब और बहजाद का उनको प्यार करना कैबन में दाखिल होती नाबिया को एक आंख न भाया था। ये किसकी बेटी? जंजबील को बहजाद की कुर्सी पर बैठे देखकर उसका सवाल अधूरा रह गया था। जंजबील का इतने हक से बहजाद की सीट पर बैठना उसे कांटों पर घसीट गया था। ये मेरी बेटी है, देखो क्यूट है ना, बिल्कुल मेरी तरह। बहजाद ने अब्रिश को गोद में उठाकर नाबिया से सवाल किया था। उसके जवाब पर जंजबील के साथ साथ अनाबिया को भी हैरत हुई थी। जंजबील को लगा था कि वो अब्रिश का तारुफ जंजबील की बेटी कहकर करवाएगा। तुम्हारी बेटी? अनाबिया ने अचंभे से पूछा। जंजबील की मुस्कुराहट उसे खटक रही थी। हाँ, मेरी और बहजाद की बेटी। जैसे बुर्क बहजाद के साथ मेरा बेटा है वैसी ही अब्रिश मेरे साथ साथ बहजाद की भी बेटी है। अब जाहिर है जब हमारी शादी हो जाएगी तो ये मेरे और इनके नहीं बल्कि हमारे बच्चे होंगे। क्यों गाजी? बहजाद के जवाब देने से पहले ही जंजबील हक से बहजाद के दाएं बाजू में अपना बायां बाजू डाले उसके कंधे से सर अटकाकर बोली थी। बहजाद तो आज झटकों की जद में था। पहले मोहब्बत का इकरार और अब शादी। उनके दरमियान शादी को लेकर डिस्कशन कब हुई भला?
تمہارے پہلے شوہر سے تمہاری ایک بیٹی ہے اور میرا نہیں خیال کہ بہزاد اب بھی محمد میں اتنا اندھا ہوا ہے کہ ایک مرتی ہوئی عورت سے شادی کرے. رابعہ نے تسخیرانہ انداز میں کہا تو زنجبیل کا چہرہ پھیکا پڑا. بکواس بند کرو رابعہ، مجھے زنجبیل کی پہلی شادی سے فرق نہیں پڑتا. زنجبیل کل بھی میری تھی اور آج بھی میری ہے. آج تم نے یہ بات کہہ دی مگر آئندہ ایسا کچھ بھی مت کہنا کہ بعد میں تمہیں اپنے کہے لفظوں کے لیے شرمندہ ہونا پڑے. بہزاد نے سرد لہجے میں اسے تنبیہ کی تھی. رابعہ کا چہرہ احساس توہین سے تمتما اٹھا تھا جبکہ زنجبیل کے دل میں ٹھنڈ پڑی تھی. سامنے کھڑی لڑکی نے اس سے اس کی زندگی کے 10 قیمتی سال چھینے تھے اور اب ایک بار پھر اس کی زندگی میں آتے سکون کو برباد کرنے پر تلی تھی. بہزاد کے اس کے دفاع میں کہے گئے ہر ایک لفظ نے اس کے جلتے دل پر ٹھنڈی پہاڑ ڈالی تھی. مگر تم میں ایسی کوئی کمی نہیں جو تم آج بھی ایک شادی شدہ عورت کے لیے مرے جا رہے ہو. اور تم چھوڑ دیا کیا تمہارے شوہر نے تمہیں؟ رابعہ اب بھی باز نہیں آئی تھی. زنجبیل خاموش کھڑی سے سن رہی تھی کہ اس کے دفاع کے لیے وہاں اس کا غازی موجود تھا. 1 منٹ سے پہلے یہاں سے چلی جاؤ رابعہ ورنہ میں اپنا ضبط کھو دوں گا. بہزاد نے غصے سے سرخ پڑتے کہا تھا جس پر وہ طرفن کرتی وہاں سے چلی گئی تھی. کچھ غلط بھی نہیں کہا اس نے. زنجبیل نے اس کو جانچتی نظروں سے دیکھتے کہا تو وہ غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگا. تم اپنی چونچ بند ہی رکھو تو بہتر ہے اور اب جاؤ یہاں سے، مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ باتیں کرنی ہے. اور ہاں، جو میں نے رابعہ سے کہا وہ غلط فہمی سمجھ کر بھول جانا. ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کرتا وہ امبریش کو لیے صوفے پر جا بیٹھا تھا جبکہ وہ آنکھیں گھماتی باہر کی جانب بڑھ گئی. نیا دن ایک بار پھر طلوع ہو چکا تھا. بہزاد ماہر کو زنجبیل کے بدلے انداز کے بارے میں بتا چکا تھا. جہاں وہ اچانک اس کی نفرت ختم ہونے پر حیران ہوا تھا وہی خوشی بھی تھی کہ ان دونوں کے درمیان کی غلط فہمی دور ہو گئی اور اب انہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یونٹ کمپنی کے 2nd فلور پر موجود وسیع و عریض ہال میں رکھا گیا تھا جس کو صبح سے تیار کیا جا رہا تھا. شام تک تقریباً ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھی. ویٹرز کے لیے کرسیاں لگا دی گئی تھی جبکہ خصوصی مہمانوں کے لیے ریمپ کے گرد صوفے رکھے گئے تھے. سارے شو کی کوریج کے لیے اسپیشل فوٹوگرافر بلائے گئے تھے جو سارے حال کی کوریج کرنے والے تھے. یہاں پر صرف انتظامیہ اور یونٹ آرگنز موجود تھے جو سارا انتظام دیکھ رہا تھا. شام تک سارے گیسٹ آ چکے تھے. ساری بورڈرز بھی تیار تھی. کمپنی کے سبھی ورکرز ہال پہنچ چکے تھے. زنجبیل بھی امبریش کو لیے آ چکی تھی. زنجبیل نے سنہری رنگ کی کلیوں والی فراک پہنی ہوئی تھی جس کے دامن پٹی اور بازوؤں پر شیشوں اور کڑھائی کا کام کیا گیا تھا. دوپٹے کو کندھے پر لٹکا کر سر پر سرخ رنگ کا حجاب کر رکھا تھا جس میں اس کا چہرہ دھمک رہا تھا. ہلکا پھلکا میک اپ کر رکھا تھا اور لبوں پر سرخ لپسٹک لگائی تھی. سرخ رنگ کا ہی خصہ پہن رکھا تھا تاکہ چلنے میں آسانی رہے. امبریش نے سرخ رنگ کی باربی فراق پہن رکھی تھی. زنجبیل نے اس کے بال آج کھلے چھوڑ دیے تھے جن کے اوپر ہیئر بینڈ لگا دیا تھا. پل پل چہکتی امبریش سچ مچ کی باربی ڈال لگ رہی تھی. زنجبیل نے اسے بھی سرخ رنگ کا خصہ پہنایا تھا. ہائے بیوٹیفل گرلز، اپنے پیچھے شوق سی آواز سنتی وہ پلٹی تھی. سامنے ہی برگ ہاتھ میں جوس تھامے کھڑا انہی کو دیکھ رہا تھا. بیوٹیفل 3 پیس سوٹ میں وہ اس وقت بہت ڈیسنٹ اور کیوٹ لگ رہا تھا. ہائے ہینڈسم. زنجبیل اس کے قریب پہنچی، اس کا ماتھا چوم کر بولی تو برگ نے حیرت سے اپنے ماتھے کو ہاتھ سے چھوا. آپ نے مجھے پاری کی؟ برگ نے اپنی حیرت کو سوال دیا. ہاں، کیا آپ کو برا لگا؟ زنجبیل نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. نو، مجھے بہت اچھا لگا. یہاں بھی کرے نا؟ برگ نے حسرت سے کہا تو وہ نیم آنکھیں لیے اس کے دونوں گالوں پر بوسہ دے گئی. مومی، میری پاری. امبریش نے اس کی فراق کھینچتے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تو وہ ہنستی ہوئی اس کے قریب بیٹھی. میری آبی جیلس ہو رہی ہے. اس کے پھولے پھولے گال چومتی وہ پوچھنے لگی. اب میری باری. برگ نے زنجبیل کے قریب آتے تھوڑا جھک کر پہلے زنجبیل کے ماتھے کو چوما پھر امبریش کے دونوں گالوں کو.
मैं भी किश करूं? अमरीश ने बुर्क को देखते पूछा तो वो खुश होता उसके पास घुटनों के बल बैठा। अमरीश ने बुर्क के सर को चूमा तो बुर्क के साथ साथ जंजीबील भी खिलखिलाकर हंसी। आप बहुत अच्छी हो गई है आंटी, बुर्क ने अमरीश को कुर्सी पर बिठाते कहा तो वो मुस्कुराई। आप मुझे आबी की तरह मोमी कहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, जंजीबील ने मुस्कुराते हुए कहा तो बुर्क की आंखें हैरत से फटी। मतलब आप बाबा से पट गई? बुर्क ने बेसाख्त पूछा तो जंजीबील का कहकर फिजा में गूंजा। बहुत अरसे बाद वो यूं बेफिक्री से हंसी थी और उसे यूं हंसते देखकर सभी एम्प्लॉयज कुछ हैरतजद हुए थे कि उन्होंने पहली बार जंजीबील को हंसते हुए देखा था। आपके बाबा ने तो मुझे बहुत पहले पटा लिया था, लेकिन अब वो मुझसे पट नहीं रहे, जंजीबील ने शरारत से कहा तो बुर्क ने आंखें घुमाई। बाबा तो आप पर लट्टू है, फिर इन्हें पटाने की क्या जरूरत? बुर्क के कहने पर उसके गाल धक उठे थे, मगर बुर्क अमरीश को देख रहा था जो उसकी फ्रंट पॉकेट से सुर्ख रुमाल निकालकर अब अपने चेहरे पर फैला रही थी। मगर अब वो नाराज हो गए और मुझसे बात भी नहीं कर रहे, जंजीबील ने कहा तो बुर्क नफी में सर हिलाया। ऐसा हो ही नहीं सकता, बाबा आपसे नाराज हो ही नहीं सकते, हर वक्त तो आपकी फोटो अपने फोन में रखते हैं। बुर्क ने इंकशाफ किया तो वह हैरत सी उसे देखने लगी। मेरी फोटो? जंजीबील ने उसके लफ्ज दोहराए। हाँ ना मोमी, आपकी बहुत सी पिक्चर्स बाबा के फोन में है, तब ना आप थोड़ी स्मार्ट होती थी और बाबा भी छोटे थे। बुर्क ने बताया तो उसे याद आया बहजाद के पास उसकी हाई स्कूल फेयरवेल पार्टी की तस्वीरें थी। उसे अंदाजा नहीं था कि वो तस्वीरें अब भी उसके पास होंगी। बुर्क आपको बॉस बुला रहे हैं। उनकी बातों को ब्रेक मायर सिद्दीकी की आवाज से ने लगाया था। हम बाद में डिस्कस करेंगे कि बाबा को कैसे पटाना है। ओके मम्मी, बुर्क ने इसके करीब झुककर राजदाना अंदाज में कहा था तो वो सर हिला गई। बुर्क वहां से चला गया तो माया जंजीबील की तरफ मुतवज्जो हुआ जो आज बेहद हसीन लग रही थी। माया ने बेसाख नजरें चुराई थी कि उसे देखते दिल कानों में धड़कना महसूस होता था। कैसी है आप? माया ने नरमी से पूछा। मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? जंजीबील ने भी नरमी से ही जवाब दिया था। मैं भी ठीक हूँ जंजीबील, माजी में मैंने जो भी आपसे कहा उसे ख्वाब समझकर भूल जाइएगा। मैं नहीं जानता था कि जिससे मुझे मोहब्बत है वो किसी और का नसीब है। मैं दुआगो हूँ कि आप हो और आपकी मोहब्बत मिल जाए। मायर का हवाला उस मुलाकात की तरफ था जब उसने जंजीबील को खुद शादी के लिए कहा था। इस के साथ जंजीबील ने मुस्कुराकर कहते बात ही खत्म कर दी थी, लेकिन अभी भी एक सवाल है जो मुझे उलझाए हुए है और इस सवाल का जवाब फिकत आपके पास है। मायर ने कहा तो जंजीबील अचंभे से उसे देखने लगी। आपने कहा था कि अमरीश के बाबा की डेथ हो चुकी है जबकि अमरीश के बाबा जिंदा है। मायर ने कहा तो वो नासमझी से उसे देखने लगी। अमरीश के बाबा की वफात हो चुकी है सर, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला था, जंजीबील ने मजबूत लहजे में जवाब दिया था। लेकिन मैं आपके शौहर से मिल चुका हूँ तब जब हमें बहजाद सर की नकली मौत के बारे में पता चला था, आपको याद हो तो? माया ने संजीदगी से कहा तो वो गहरा सांस भर कर रह गई। वो अभी जंजीबील कुछ कहने ही लगी थी जब एक धमाकेदार आवाज उनके करीब से गूंजी थी। मेरे ख्याल से इवेंट शुरू करवा देना चाहिए, अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो। वो बहजाद था जो उनके सामने खड़ा नागवारी से बोल रहा था। यूं तो मायर के दिल में अब ऐसी कोई बात नहीं थी, फिर भी उसे उन दोनों का यूं बेतरफी से खड़े होकर बात करना पसंद नहीं आया था। जंजीबील की निगाहें बहजाद पर जमी थी जो इस वक्त बुर्क की ही तरह का ब्राउन 3 पीस सूट पहने बेहद वजह लग रहा था। उसके चेहरे पर जेलसी के तासर देखती वो दिल ही दिल में मुस्कुराई थी। जहाँ उसका दिल बहजाद की तरफ से साफ हुआ था, वहीं अभी भी ये शिकवा कायम था कि उसने अनाबिया से मोहब्बत का इजहार क्यों किया था। मजबूरी ही सही, पर फिर भी उसने वो हक अनाबिया को क्यों दिया था जो सिर्फ और सिर्फ जंजीबील का था। जी बिल्कुल सर, हम अभी यही बात कर रहे थे, चले बाय सर, जंजीबील ने कहकर मायर का बाजू थामा था जिसे देखकर बहजाद की आंखों में मिर्चें सी लगी थी, जबकि मायर जंजीबील के अंदाज पर हैरान होता। एक नजर बहजाद को देखकर जंजीबील के साथ आगे बढ़ गया था। शो का आगाज कर दिया गया था। मायर सिद्दीकी स्टेज पर खड़ा सबको अपनी नई ज्वेलरी और क्लॉथ की कलेक्शन के बारे में मालूमात दे रहा था। सभी उसकी तरफ मुतवज्जो थे। आधी लाइट्स ऑफ कर दी गई थी जिसके बासे वहां अब नहीं अंधेरा था, सिर्फ स्टेज पर स्पॉट लाइट्स थी जो मायर को घेरे हुए थी। कुछ ही देर में वॉक शुरू
वॉक शुरू हो गई थी। सारी मॉडल्स एक के बाद एक करके रैंप पर चलने लगी थी। जंजीबील के साथ एक और डिजाइनर थी जिसकी कलेक्शन लॉन्च की गई थी। पहले जंजीबील के और फिर उस डिजाइनर्स की कलेक्शन शो की गई थी। तकरीबन 1 घंटे तक ये सिलसिला चलता रहा था। जंजीबील दिल ही दिल में अल्लाह से इस इवेंट की और अपनी कामयाबी की दुआएं मांग रही थी। जब मॉडल्स का सिलसिला खत्म हुआ तो दोनों डिजाइनर्स को रैंप पर बुलाया गया था। जंजीबील ने अब्रिश को बुर्क के हवाले किया था कि उससे बेहतर तो अब्रिश को कोई नहीं संभाल सकता था। वो दोनों एक साथ रैंप पर गई थी जहां मॉडल्स पूरे रैंप पर बिखरी हुई थी। जंजीबील की आंखें निम हुई थी। खुदा के करम नवाजी थी कि उसने जंजीबील को कामयाबी से हमकिनार किया था। फ्लैश लाइट्स उसके चेहरे पर पड़ रही थी। अब फ्लैश लाइट्स में जंजीबील की निगाह बहजाद की जानिब उठी थी जो एक कोने में खड़ा राबिया से कोई बात कर रहा था, जो इस वक्त पर्पल गाउन में मुबलिस थी। बालों को खुला छोड़ रखा था जबकि दुपट्टा दीदादा था। उसे बहजाद के साथ देखकर जंजीबील का आंख जल उठा था। वो दोनों नीचे आई तो माया ने कंपनी के ओनर यानी बहजाद को बुलाया था। बहजाद अनारबी को वहीं छोड़कर स्टेज की तरफ जाने बढ़ गया था जहां अब वो मेहमानों का शुक्रिया अदा करता अपनी टीम का शुक्रिया अदा कर रहा था जिन्होंने इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए अपनी पूरी जान लगाई। 5 मिनट की स्पीच के बाद वो नीचे उतर आया था। गेस्ट की खातिर तवाज़ुन का एहतमाम किया जा रहा था और माइस वहाँ बिजी हो गया था। बहजाद कोई फोन कॉल सुन रहा था। जंजीबील अनाबिया की जानिब बढ़ी थी जिसकी नजरें बहजाद पर जमी हुई थी। उससे पहले कि वो उस तक पहुंची अचानक कोई उसके रास्ते में आया था। जंजीबील ठटक कर रुकी थी। वो कोई लड़की थी जिसकी उम्र जंजीबील की जितनी ही थी। अब तो लोग बड़े लोग बन गए हैं, हम गरीबों को कहाँ पहचानेंगे। वो लड़की जंजीबील की सवालिया और अजनबी नजरों को देखती तंजी अंदाज में बोली तो जंजीबील ने अचंभे से उसका फरमान सुना। आप मुझसे कह रही है? जंजीबील ने आगे पीछे देखते पूछा कि शायद वो किसी और से मुखातिब हो। नींद अंधेरे में वो वाकई सामने खड़ी लड़की को पहचान नहीं पाई थी। नहीं, तुम्हारे भूत से कह रही हूँ डफर। बहजाद से शादी के बाद क्या पागल हो गई है तू कि अपनी बानों को भूल गई। अब की बार वो उसे जबरदस्ती गले से लगाती हुई बोली तो उसके बानों कहने पर जंजीबील हक्का बक्का रह गई। गुल बानो? जंजीबील ने बेयकीनी से पूछा। हाँ गुल बानो, माना कि तुमने कभी मुझे अपनी खास दोस्त नहीं समझा था लेकिन यूं भी कोई छोड़कर जाता है जैसे तू गई। जंजीबील ने शिकवा नुमा अंदाज में कहती वो उससे अलग हुई। ऐसा नहीं है बानो, एक तो भी तो मेरी दोस्त थी। बस तब हालात कुछ ऐसे बने कि जंजीबील उसका शिकवा खत्म करने की वजह बता रही थी जब बुर्क के मुकाने पर रुक कर उसे देखने लगी। लिटिल फेरी बहुत रो रही है मोमी, आपके पास आना चाह रही है। बुर्क ने अपनी उंगली थामे खड़ी ब्रिज की तरफ इशारा किया जो अब जंजीबील की टांगों से लिपट गई थी। माशाल्लाह ये तुम्हारे और बहजाद के बच्चे हैं ना? अभी उसे स्पीच करते देखा था। पहले तो मैं पहचान ही नहीं पाई थी, बहुत बदल गया है वो, लेकिन तुम आज भी वैसी ही हो। वैसे तुम दोनों बहुत लकी हो जो एक दूसरे से मोहब्बत करके एक दूसरे को पा भी लिया। गुल बानो बारी बारी बुर्क और अब्रिश को प्यार करती हुई बोली थी। नहीं बानो की बात पर वो फीका सा मुस्कुराती। जंजीबील उसे बताने लगी थी कि जैसा वो समझ रही है वैसा कुछ नहीं है, मगर तभी मायर की आमद पर उसकी बात उसके मुंह में ही रह गई। जंजीबील, कुछ गेस्ट आपसे मिलना चाह रहे हैं वहाँ। मायर ने इशारा किया तो वो सारे लाती बानों से माजरत कहती उस तरफ बढ़ी। आप मायर से दिखी है? गुलबानो ने सामने खड़े मायर को देखते चमकती आंखों से पूछा जो अब उसकी सवाल पर सर हिलाते अजनबियत से उसे देखने लगा था। मैं गुलबानो हूँ, जंजीबील की दोस्त। चमकती आंखों से मायर को देखती वो अपना तारुफ करवाने लगी। गुलबानो के नाम पर मायर चौंका था। बहजाद के मुंह से वो ये नाम सुन चुका था। गुलबानो की नजरें मायर पर जमी हुई थी। ब्लू कलर की पैंट शर्ट में मुबले संजीदा और पुरवकार सा ये शख्स गुलबानो को तब से पसंद था जब एक दफा शॉपिंग मॉल में उसने गुलबानो की मदद की थी। वो शॉपिंग करने जा रही थी जब पार्किंग में कोई लड़का उसका पर्स छीन कर भागा था। तब मायर भी वही था और उसी ने
के भागते लड़के को पकड़कर बारो का पर्स वापस हासिल किया था। ये तकरीबन 2 साल पहले की बात थी, जब वो 22 साल की थी। सामने खड़ा शख्स पहले भी वजहत था, मगर अब उसकी पर्सनैलिटी में मजीद इजाफा हो गया था। तब भी वो ऐसी ही इस शख्स के शहर में कोई थी जैसे आज खो रही थी। इन 2 सालों में उसने इस शख्स से मिलने की लाखों दुआएं की थी, और अब उसे सामने पाकर लग रहा था जैसे उसकी सारी दुआओं का समर उसे मिल गया है। ओह नाइस टू मीट यू, माया ने खुश अखलाकी से कहते अमरीश को देखा, जो नीचे बैठ गई थी, और बुर्क उसकी बिनती कर रहा था कि नीचे से उठ जाए, मगर वो उससे उसकी एक भी ना सुन रही थी। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं, माया के तकल्लुफ भरे अंदाज पर बानो की मुस्कुराहट मान पड़ी थी। उसकी बात सुनकर माया ने बाथरूम सामने खड़ी लड़की को देखा था, जो नफीस सी पीच कलर की शॉर्ट फ्रॉक के साथ बेल बॉटम पजामा पहने हुए थी। इस दुपट्टे को सर पर जमा रखा था, पाँव में पीच के कलर की हील पहनी हुई थी। नफासत से किए गए मेकअप और नेचर कलर की लिपस्टिक के साथ वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। नकूश काफ़ी तीखे से थे, लेकिन उसे नहीं लगता था कि वो उसे जानता है। सॉरी, बट मैंने आपको सच में नहीं पहचाना। मायर के जवाब पर जो उसे उम्मीद थी कि वो इकरार करेगा, वो उम्मीद भी टूटी थी। 2 साल पहले आपने शॉपिंग मॉल में मेरी हेल्प की थी, जब एक चोर मेरा पर्स छीन कर भागा था। गुलबानो ने हवाला दिया, मगर मायर को सच में कुछ भी याद नहीं आया था। आई एम रियली सॉरी, बट मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा। मायर को खामखा शर्मिंदगी हुई थी कि सामने खड़ी लड़की को पहचान नहीं पा रहा था। शायद अब वो लड़की भी शर्मिंदगी महसूस करे, और गुलबानो आप खुद में ही शर्मिंदा हो रही थी कि उसने जिक्र ही क्यों छेड़ा। कोई बात नहीं सर, अब हर कोई इतना भी अहम नहीं होता कि उसे याद रखा जाए। खफत से सर पर चेहरा लिए वो अफसोसगी से बोलती नीचे अमरीश के पास झुकी थी, जबकि मायर उसके लहजे में कुछ उदासी सी महसूस करता चौंक उठा था। आ जाओ छोटी पठारी, मैं आपकी आनी हूँ, आपकी मम्मी की बहन। गुलबानो ने झुककर अमरीश को हाथों से थामने खड़ा किया। मम्मी पास जाना है, अमरीश ने मुंह लटका कर कहा था। रात काफ़ी हो गई थी और उसे अब नींद आ रही थी, मगर माँ उसके पास ही नहीं थी। अभी आपकी मम्मी पास जाते हैं, आ जाओ। गुलबानो उसका हाथ थामती जमील की जाने बढ़ने लगी, जबकि बुर्क भी उनके साथ हो लिया था। मायर की निगाहों ने दूर तक गुलबानो का पीछा किया था। वो लड़की अपने लफ्जों से उसे चौंका गई थी, और वो अब उसी के बारे में सोचता जा रहा था। ये लो भाई, छोटी पठारी को अपनी मम्मी के पास जाना था। जंजीबील के पास पहुंचकर गुलबानो ने अमरीश को जंजीबील के हवाले किया। आ जाओ मेरी जान, अमरीश का माथा चूमता वो नरमी से बोली थी। वैसे अपने शौहर गाजी से नहीं मिलवाओगी, गुलबानो ने शरारत से कहा, तो उसका रंग फीका पड़ा। गुलबानो को क्या खबर कि उनकी मोहब्बत में इस कदर आजमाइशें आई थी कि वो अभी तक उसके शौहर होने का रुतबा नहीं पा सका था। अभी वो मसरूफ़ है, बाद में। वो यहाँ बाजी का तस्करा नहीं चाहती थी, तभी बहाना कर दिया। अच्छा फ़ोन नंबर तो दो मुझे, अब तो मिलना मिलाना लगा रहेगा। गुलबानो ने उससे कहा, तो वो उसके फ़ोन में अपना नंबर सेव होती गुलबानो ने उसे मैसेज किया ताकि वो भी उसका नंबर सेव कर ले। नाबिया जंजीबील को दोबारा नजर नहीं आई थी, जिस पर उसने खुदा का शुक्र अदा किया था। आज हारिस पाकिस्तान आने वाला था, और वो उसी को रिसीव करने एयरपोर्ट गई थी, जिसकी खबर जंजीबील के साथ बहजाद को भी नहीं थी कि नाबिया बहजाद को सरप्राइज देने वाली थी। वैसे वो जो अभी हमसे मिले वो कौन है? गुलबानो ने जंजीबील से पूछा था। नजरें मायर की जानिब उठी थी, जो बहजाद के साथ कोई बात कर रहा था। सब मेहमान अब आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होने लगे थे। वो मायर सर हैं, कंपनी के मैनेजर। जंजीबील ने जवाब दिया तो वो सर हिला गई। इससे पहले कि मजीद बात होती, जंजीबील का फोन बजने लगा था। कॉल अस्पताल से थी और उसे इमरजेंसी में बुलाया गया था। नर्स की बात सुनते उसका रंग जर्द पड़ गया था, जिसने बताया था कि भी अम्मा की तबीयत खतरनाक हद तक बिगड़ रही है और वो बार बार खून की उल्टियां कर रही है। बानो, मुझे अभी जाना होगा, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, अल्लाह हाफिज। वो अमरीश को गोद में उठाती बगैर गुलबानो की मजीद कोई बात सुने बाहर की जाने भागी
भागी थी। उसे यूं भागता देखकर माहिर और बहजाद एक साथ बुर्क और बानो के पास आए थे, जो बाखुद भी हैरान खड़े थे। जंजीबील कहाँ गई है? बहजाद ने बेकरारी से पूछा था। माहिर के चेहरे पर भी सवालिया निशान था। वो बाबा, मोमी को किसी की कॉल आई थी तो वो चली गई, बुर्क ने तेजी से बताया था, जिस पर वो माहिर की तरफ मुड़ा। यहाँ सब संभाल लेना। बहजाद माहिर से इतना कहकर रुका नहीं था। ऐसी क्या बात हो गई कि बताए बगैर चली गई? माहिर बड़बड़ाया। वो काफी परेशान हो गई थी, शायद कोई मसला हो गया हो। गुलबानो के चेहरे पर भी फिक्र के तासरात रकम थे, जिसे देखता वो सर हिला गया था। वो बाहर आया तो अब्रिश को लेकर तेज तेज कदम से चलती हुई उसे पार्किंग में ही नजर आ गई थी। अब्रिश को उठाकर चलना मुश्किल था, तभी वो अभी यहाँ तक पहुँची थी। अकेली होती तो शायद अब तक पिन रोड पर पहुंच गई होती। रात का अंधेरा हर सो छाया हुआ था। ऐसे में पार्किंग में चाय वहशतनाक खामोशी से घबराए वो मुसलसल चलती जा रही थी। जब बहजाद ने करीब पहुंचते उसका बाजू थामते उसे रोका। कहाँ जा रही हो अकेली? बहजाद ने सख्ती से पूछा था, जिस पर उसका जब्त टूटा था और वो रोने लगी थी। भी अम्मा ठीक नहीं है, अस्पताल जा रही हूँ। बहते आंसुओं के दरमियान उसने अटक अटक कर बताया तो बगैर कोई लफ्ज़ कहे उसे लिए अपनी गाड़ी तक आया था। उसे अंदर बिठाकर वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा। अब्रिश जंजीबील की गोद में थी, जो अब ऊँग रही थी। जंजीबील से अस्पताल का पता पूछकर वो गाड़ी को अस्पताल के रास्ते पर डाल गया था। बस 10 मिनट बाद वो लोग अस्पताल पहुंच चुके थे। बहजाद ने अब्रिश को उसकी गोद से ले लिया था। कुछ देर बाद वो लोग भी अम्मा के रूम के बाहर खड़े थे, जिन्हें आईसीयू में रखा गया था। डॉक्टर अंदर चेकअप कर रहे थे, जहां एक नर्स बाहर आई। अब कैसी हैं भी अम्मा? जंजीबील ने बेचैनी से पूछा था। मरीजा की हालत बेहद ख़राब है, कबल अज़ वक्त कुछ कहना मुश्किल है। आपसे कहा भी था कि जल्दी पैसे जमा करवाएं, मगर आप तो नर्स तासुस से कहती जुमला अधूरा छोड़कर आगे बढ़ गई थी, जबकि बहजाद नासमझी से जंजीबील को देख रहा था। सुई अब्रिश को कंधे से लगा रखा था। बी अम्मा को ब्लड कैंसर था, लास्ट स्टेज। जंजीबील ने नीम आंखें भीगी सी लहजे में कहा था। बहजाद अपनी जगह साख्त रह गया। नफीस और मुशफ़िकी सी अम्मा बी का चेहरा उसके सामने घूम गया था। उसे दिली तौर पर बेहद दुख हुआ था। नर्स पैसों के बारे में क्या कह रही थी? बहजाद ने नरमी से पूछा। मेरे पास जितने पैसे थे जमा करवा दिए थे, मजीद नहीं थी तो मोहलत मांगी थी। जंजीबील ने शर्मिंदा से लहजे में बताया तो बहजाद ने सख्त नज़रों से उसे देखा। तो मेरे पास क्यों नहीं आई? मुझे बताती तो सही। उसने ये नहीं पूछा था कि कितने पैसे थे। उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था कि अगर उसके पास पैसे नहीं थे तो वो उसके पास क्यों नहीं आई, किस हक़ से आती। जंजीबील ने शिकवा के निगाहों से उसे देखा था। तुम्हारी नाराज़गी, नफ़रत और बेरुखी के बाद भी मेरे ऊपर सारे हक़ सिर्फ तुम्हारे हैं, और ये बात तुम अच्छे से जानती हो। बहजाद ने जताया तो वो नज़रें चुरा कर रह गई। इतना हौसला नहीं था मुझ में कि जिससे बुलंद बाग नफ़रत का दावा करती हूँ उसी से पैसों की मांग करूं। जंजीबील ने धीमे लहजे में साफ गोई से कहा, जिस पर वो गहरा सांस भरकर रह गया। मैं तुम्हें बहुत अक्लमंद समझता था बेला। बहजाद ने तासुस भरे लहजे में कहा तो रुख फेर गई। जो गुजर चुका था उस पर अब पछताने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। रोना बंद करो और दुआ करो, वो ठीक हो जाएंगी। उसकी हालत देखते बहजाद ने उसे समझाना चाहा था। वो ठीक हो जाएंगी ना? मेरे लिए मुआवजा होगा ना? जंजीबील ने नीम आंखें उसके चेहरे पर गाड़े सवाल किया। हाँ होगा मुआवजा, अल्लाह पर यकीन है ना? बहजाद ने मजबूत लहजे में कहते इस्तफार किया तो वो साहबत में सर हिला गई। पता है, जब मुश्किलात आ जाए और इंसान अल्लाह पर मुकम्मल ईमान रखे तो मुआवजे हो जाते हैं, और मुआवजे उन्हीं के लिए होते हैं जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं। अल्लाह पर यकीन रखना तो हमारे नबियों और रसूलों का वास्ता है। जब कोई रास्ता नज़र ना आए तो अल्लाह पर कामिल यकीन रखो कि अल्लाह ने अगर एक रास्ता बंद किया है तो दूसरा रास्ता खोल देगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जानती हो ना? फ़िरौन के इतने मुज़ालिम के बाद भी वो डटे रहे, बिल्कुल भी हार नहीं मानी। उनके पीछे उनका लक्ष्य था और आगे समंदर। आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था यहाँ, लेकिन अल्लाह पर यकीन था कि वो कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा, और उसने समुंदर में उनके लिए रास्ता निकाल भी दिया। उनका ये यकीन समुंदर के पानी पर नहीं था, बल्कि खुद ब खुद उनके लिए रास्ता बना देगा। बल्कि उनका यकीन अल्लाह पर था, जिसके कब्जे कुदरत में हर शय है, जिनके कुन पर हर चीज़ हो जाती है। लेकिन अगर मुआवजा ना भी हुआ तो सब्र का मुजाहरा करना। तुम यकीन रख कर दुआ तो कर दो, देखना सब ठीक हो जाएगा।
महजाद ने नरमी से उसे समझाया था, जिस पर उसने आंसू साफ करते सर हिलाया था। दिल बेसाख्त भी बी अम्मा की सेहतयाबी के लिए दुआ करने लगा था। अभी कुछ ही देर गुजरी थी जब आईसीयू का दरवाजा खुला और 2-3 डॉक्टर्स बाहर आए। जंजीबील तेजी से उनकी जानिब लपकी, जबकि महजाद भी धीमे कदमों से उनकी जानिब बढ़ता कि अब्रिश उठ न जाए। मेरी बी अम्मा कैसी हैं? जंजीबील ने आंखें साफ करते पूछा था। आई एम सॉरी बट शी इज नो मोर। डॉक्टर के लफ्ज़ या कोई धमाका, कोई जंजीबील की समातों में गूंजता उसे कंग कर गया था। वो लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हटी थी और दीवार के साथ लगकर नीचे बैठती रोना शुरू हो चुकी थी। आज उसे लगा था वो बेसाबयान हो गई हो। एक बड़ी अम्मा का ही सहारा था मगर आज वो भी उसे छोड़कर चली गई थी। महजाद अब्रिश को एक भी अम्मा का ही सहारा था मगर आज वो भी उसे छोड़कर चली गई थी। महजाद अब्रिश को 3 सीटर चेयर पर लेटाकर उसके करीब बैठता उसे चुप करवाने लगा, मगर उसकी हालत मजीद खराब होती जा रही थी। मोमी, उसके रोने की आवाज़ सुनकर अब्रिश भी जाग उठी थी और अब अपनी माँ को रोते देखकर खुद भी रोने लगी थी। महजाद बौखला गया था कि किसको संभाले। उसने तेजी से फ़ोन निकालते और नाबिया का नंबर मिलाया था, मगर उसका फ़ोन बंद जा रहा था। उसके बाद मायर का नंबर मिलाते उसे अपने साथ किसी लेडी को लाने का कहकर फ़ोन बंद किया था। जंजीबील, संभालो खुद को, देखो तुम्हारे रोने से अब्रिश भी परेशान हो रही है। महजाद ने उसे समझाते अब्रिश को उठाते चुप करवाने की कोशिश की थी। कैसे संभालूं, माँ थी वो मेरी। जंजीबील ने रोते हुए कहा तो वो लब भेज गया। वो उसका दर्द समझ सकता था कि माँ तो उसकी भी थी। वो अब्रिश को बहला रहा था जबकि जंजीबील अभी भी जमीन पर बैठी रो रही थी। आधे घंटे तक मायर अपने साथ गुलबानों को लेकर आ गया था कि इस वक्त वहाँ वही उसे नजर आई थी। वहाँ के सारे मामलात वो निपटा चुका था और बुर्क को भी ड्राइवर के साथ घर भेज चुका था। वो अपने घर फ़ोन करके बता चुकी थी। गुलबानों पहले जंजीबील को हौसला देने लगी थी, मगर अब्रिश को चुप न करते देखकर वो अब्रिश को चुप करवाने लगी थी। माहिर और महजाद बाड़ी लेकर जाने के लिए इंतज़ाम करने लगे थे और ये इंतज़ामात और पेपर वर्क करवाते रात के 3 बज चुके थे। अब्रिश और गुलबानों को महजाद ने माहिर के साथ रवाना किया था और खुद वो अपनी गाड़ी में जंजीबील के साथ एम्बुलेंस के पीछे पीछे घर पहुंचा था। आज भी अम्मा को गुजरे 1 हफ्ता हो चुका था और इस 1 हफ्ते में जंजीबील एकदम चुप होकर रह गई थी। तहजीज़ तफरीन का सारा काम महजाद और माया ने ही संभाला था। जंजीबील भी अम्मा की लाश से लिपटकर इस कदर रोई थी कि सबकी आंखें उसके गम पर अश्कबार हो गई थी। इस दौरान अब्रिश को गुलबानों ने ही संभाला था। वो रोज़ उसके पास आ जाती थी और काफ़ी देर तक उसके पास ही रहती थी। महजाद भी बुर्क को शाम के वक्त ले आता था ताकि अब्रिश बहल जाए, वरना अपनी माँ को देख देख कर वो बहुत रोती थी, जो उसे गोद में भी नहीं लेती थी। मिर्जा साहब भी 2-3 बार होकर जा चुके थे। मायर की वालदा समीना बेगम भी कभी कभार आ जाती थी और मायर ही इन्हें छोड़ जाता था और फिर शाम को वापसी पर साथ ही ले जाता था। समीना बेगम को जंजीबील बहुत अच्छी लगी थी और इन्हें इल्म हो गया था कि ये वही है जिसका जिक्र उसने मायर से किया था। मायर से उन्होंने दोबारा उसी बारे में बात की थी, लेकिन वो ये कहकर बात खत्म कर गया था कि वो जिसकी इमारत है जल्दी उसके पास लौट जाएगी, तो वो अब इस बारे में आइंदा कोई बात ना करे। समीना बेगम भी उसकी संजीदगी पर चुप कर गई थी। अनामिया भी महजाद के साथ आई थी और महजाद के सामने मसमूई हमदर्दी का इजहार करती जल्दी वापसी को हो ली थी। हारिस भी गजनवी हाउस में आ चुका था, लेकिन वो अभी तक जंजीबील की वापसी से अनजान था। ना ही अनामिया ने अभी तक उसे इस बाबत बताया था। जंजीबील सबके सवालों का मुख्तसर जवाब दे देती थी। गुलबानो मुसलसल उसे इस कैफियत से निकालने की कोशिश कर रही थी। मायर की जुबानी ये जानकर उसे शदीद झटका लगा था कि महजाद जंजीबील का शौहर नहीं था, और ये जानने के बाद उसके दिल में कई किस्म के सवाल जन्म लेने लगे थे जिनका जवाब जंजीबील के अलावा किसी के पास नहीं था। और अभी जंजीबील इस हालत में नहीं थी कि वो उसके जवाब दे पाती। इन चंद दिनों में गुलबानो ने जिस तरह जंजीबील और अब्रिश को संभाला था, माहिर उससे मुतासिर हुआ था। उनकी आपस में ज़्यादा बातचीत तो नहीं होती थी, लेकिन वो उसे एक अच्छी लड़की लगी थी, जबकि गुलबानो तो उसे एक नज़र देखकर ही सारी खुशियाँ पा लेती थी। हमसायों की ज़बानी ही उनको सबको पता चला था कि बीएम्मा जंजीबील की सगी माँ नहीं थी, बल्कि वो उनके पास रहती थी। बीएम्मा के 2 ही बेटे थे और दोनों ने बैरून मुल्क की शादी कर रखी थी।
اور وہ ہمیشہ کے لیے بیرون ملک شفٹ ہو چکے تھے۔ ان کو فون کر کے بی اماں کی موت کی اطلاع دی جا چکی تھی، لیکن دونوں نے ہی مصروفیات کا بہانہ کر کے فون کاٹ دیا تھا۔ وہ ویسے بھی بی اماں سے اپنی شادیوں کے بعد سے ہی بے نیاز ہو چکے تھے۔ پہلے جو خرچہ بھیجا کرتے تھے وہ بھی کئی سالوں سے بند ہو چکا تھا۔ انہیں تو شاید یاد بھی نہیں تھا کہ وہ ان کی ایک بوڑھی ماں بھی ہے جو ہر روز ان کی راہ تکتی ہے۔ ہوتی ہے نہ کچھ اولادیں جن کو اپنے ماں باپ سے زیادہ اپنی پرواہ ہوتی ہے، جو یہ سوچتے ہیں کہ اپنے لیے جیا جائے، اور جب ان کے ماں باپ ان سے سوال کرتے ہیں کہ ہم نے جو پال پوس کر بڑا کیا تو اس کا کیا، تو ان کا آگے سے ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ آپ نے جو کیا وہ آپ کا فرض تھا، ہم پہ کوئی احسان نہیں کیا۔ اب کوئی ان سے یہ پوچھے کہ تمہارے فرائض میں یہ شامل نہیں کہ اپنے والدین کے بڑھاپے میں ان کی خدمت کرو اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، جس طرح والدین کے فرائض ہوتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کے اچھے سے پرورش اور تربیت کریں، اسی طرح اولاد کے بھی فرائض میں شامل ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، جن کی وجہ سے آج وہ اس دنیا میں ایک خوشباش زندگی گزار رہے ہیں۔ مگر بہت کم دیکھنے میں آیا ہے کہ اولاد اپنے والدین کے بڑھاپے میں ان سے حسن سلوک کرے۔ والدین کے بوڑھے ہوتے ہی کچھ لوگ ان کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیتے ہیں، جہاں وہ اپنی اولاد سے ملنے اور ان کو دیکھنے کی حسرت میں ہی اس در فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ بی اماں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ ان کے دونوں بیٹے ان کے لیے اسی گھر کو اولڈ ایج ہوم بنا کر انہیں ان کی یاد میں تڑپنے اور سسکنے کو چھوڑ گئے تھے۔ شام کا وقت تھا، ابھی گل بانو اس کے پاس سے ہو کر گئی تھی۔ امریش کو اس نے کھانا کھلا کر سلا دیا تھا۔ بی اماں کے کمرے میں بیٹھی وہ ان کے ساتھ بیتے سکھ دکھ کے دنوں کو یاد کر رہی تھی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، اپنی آنکھیں صاف کرتی وہ اٹھی اور دوپٹہ سر پر جماتی باہر نکلی۔ وہ دو 33-38 سالہ مرد تھے جو 3 پیس سوٹ میں مبلس ناقدرانہ نگاہوں سے گھر کا جائزہ لیتے اسے ایک طرف کر کے اندر داخل ہوئے تھے۔ میری اجازت کے بغیر کہاں چلے آ رہے ہیں آپ؟ اس نے سختی سے کہا تھا، جس پر وہ استنجا مسکرائے تھے۔ اپنے ہی گھر میں داخل ہونے کے لیے ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے لڑکی، اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ان میں سے ایک نے تنزیہ انداز میں کہا۔ اپنا گھر؟ زنجبیل نے دہرایا۔ ہاں، ہمارے باپ کا گھر ہے یہ، جہاں تم اس وقت کھڑی ہو۔ اب ماں جی تو رہی نہیں، اب ہمیں ہی اس کو دیکھنا پڑے گا۔ دوسرے نے نخوست سے سر جھٹکا تھا۔ زنجبیل کو سمجھنے میں وقت نہیں لگا تھا کہ وہ بی اماں کے بیٹے تھے۔ آپ جمال اور افضل ہیں؟ زنجبیل نے حیرت سے پوچھا۔ جی بالکل۔ اب بتاؤ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ برآمدے میں رکھی کرسیوں پر برجمار ہوئے۔ میں بی اماں کے ساتھ اسی گھر میں رہتی ہوں، زنجبیل نے دھیمے لہجے میں بتایا تھا۔ پہلے رہتی تھی، مگر اب نہیں رہو گی۔ ہمیں کل تک یہ گھر خالی چاہیے، جمال نے کہا تو زنجبیل نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں کہاں جاؤں گی؟ زنجبیل نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ جہاں بھی جاؤ ہماری بلا سے بس جلدی ہمارا گھر خالی کرو، افضل نے سختی سے کہا۔ یہ آپ کا نہیں، بی اماں کا گھر ہے، جو ان کے محروم شوہر کے نام ہے، زنجبیل نے سرد لہجے میں کہا۔ ان کے محروم شوہر ہمارے باپ تھے، جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، اور اب قانونی طور پر یہ گھر ہمارا ہے۔ آرام سے کہہ رہے ہیں گھر خالی کرو، اس کے معاملات نپٹا کر ہمیں واپس بھی جانا ہے۔ جمال نے اسے گھور کر کہا تو وہ تنزیہ ہنسی۔ جب بی اماں تھی تب تو خیال نہیں آیا اس گھر کا، اور اب جب وہ اس دنیا سے چلی گئی تو دوڑے چلے آئے تاکہ اس گھر کو بیچ کر دولت حاصل کر سکے۔ زنجبیل نے تنزیہ کہا تو وہ دونوں غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ تو وہ بھی جانتی تھی کہ اگر عدالت میں بھی یہ معاملہ جاتا تو فیصلہ جمال اور افضل کے حق میں ہونا تھا، کہ وہی تو بی اماں کی سکی اولادیں تھیں۔ تبھی اس نے گھر خالی کرنے کا سوچ لیا تھا، لیکن جاتے جاتے وہ انہیں احساس دلانا چاہتی تھی کہ جو ان کی یاد میں روتے روتے مر گئی وہ اس کی سگی ماں تھی، جن کی وجہ سے وہ اس دنیا میں آئے تھے۔ اپنی حد مت بھولو لڑکی، افضل غصے سے بولا تھا، جس پر وہ نظر انداز کر گئی تھی۔
मैं अपनी हद नहीं भूली सर। आप इस घर को बेचकर दौलत हासिल करने के लिए आ गए, मगर कुछ दिन पहले आपके पास अपनी ही सगी माँ के जनाजे में आने के लिए वक्त नहीं था। जितने साल मैं यहाँ उनके पास रही, इन्हें हर रोज रो रो कर आप दोनों की तस्वीरों से बातें करते देखती रही। खुदा से जाने कितनी मिन्नतें और दुआएं कर डाली थी कि आप लोग आ जाएं, एक बार ही सही आ जाएं, ताकि उनकी ममता की प्यास बुझ सके। लेकिन आप लोग भी कैसे आते? आप लोगों की रस्सी तो अल्लाह ने दराज कर रखी है, जिसे वो वक्त आने पर ऐसे खींचेगा कि आप लोग मुंह के बल गिरेंगे। भी अम्मा को इल्म नहीं था कि इनके बेटे अपनी आज़ाइशों और दौलत में उनके वजूद को बिल्कुल ही फरमोश कर बैठे हैं। अगर इल्म होता तो शायद वो सब्र कर लेती। वो तो तड़पते सिसकते चली गई, लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि आप लोगों को अपनी माँ का दिल दुखाने पर ऐसी सजा दें कि आप लोग वही तड़प और दर्द महसूस करें जो बी अम्मा करती थी। आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं, कल तक ये घर खाली हो जाएगा। जंजबील ने तसस्सुस से कहते सर झटका था। अपनी तकरीर बंद करो और जो कहा है उस पर अमल भी करना। वो दोनों बगैर उसके लफ्जों से मुतासिर हुए जा चुके थे, जबकि वो ताज्जुब से इन्हें देखकर रह गई थी। कैसे बेहिस लोग थे। अभी वो लोग बाहर निकले ही थे जब बहजाद माथे पर बल सजाए अंदर दाखिल हुआ। कौन थे वो लोग? बहजाद ने परेशानी से पूछा था। बी अम्मा के बेटे थे, कहने आए थे कि घर खाली कर दो। जंजबील ने धीमे से लहजे में कहते किचन की तरफ कदम बढ़ाए थे। बहजाद मामला बहजाद की समझ में आ गया था। फिर तुमने क्या कहा? बहजाद ने उसकी पुश्त को देखकर पूछा, तो जो उसके लिए जूस बना रही थी। जाने क्यों बहजाद को अच्छा लगा था। यही कि मैं कल तक घर खाली कर दूंगी। तुम किसी होम सेंटर का पता कर दो, मैं अब्रिश के साथ वहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी। जंजबील ने कहते हुए जूस का गिलास उसके सामने किया तो वो कुछ पल उसे देखता रहा, फिर जूस का गिलास लबों से लगाकर एक ही घूंट में हलक में उतार गया। मुझे एक सेंटर का पता है, तुम वहाँ शिफ्ट हो जाना। उम्मीद है तुम्हें अच्छा लगेगा। बहजाद ने नॉर्मल से लहजे में कहा तो फीका सा मुस्कुराती सर हिला गई। लेकिन फिर तुम्हें आज ही वहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा। अपना सामान पैक कर लो, मैं आधे घंटे में वापस आता हूँ। उजलत से कहकर वो बगैर उसकी सुने वापसी को पलट गया था। उसके जाने के बाद वो बेदिली से अपना और अब्रिश का जरूरी सामान पैक करने लगी थी। आज शिफ्ट होती या कल क्या फर्क पड़ता था, लेकिन उसका दिल जरूर दुखा था ये सोचकर कि बहजाद को उससे सच में मोहब्बत नहीं रही, वरना वो यूं उसे भटकने को क्यों छोड़ता। मगर फिर जल्दी से अपना सर झटक गई। कोई मर्द कब तक उस औरत का इंतजार कर सकता है जो उसे बेवफा कहकर बीच सफर मोहब्बत में छोड़ गई हो।